कुछ याद है लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया गया था? क्या आप लोग क्लास में हैं या क्लास ऑन करके गायब है? रोशनलाल, रोशनलाल मेरी आवाज आ रही है? किसी को याद है लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया गया था? तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर डिस्कस कर रहे थे। और इस एप्लीकेशन में हम लोगों ने चार्जिंग बैटरी का एप्लीकेशन देखा था। विच इज आरी लोड। सो लास्ट क्लास में मैंने एक आरी लोड का सर्किट बनाया था विथ हाफ वेव सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर like this. And this was your charging battery. Hello. Okay, so we were discussing half wave single phase half wave rectifiers application with charging a battery of a RE load, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि this is Vs and this is E. So we are basically storing the charge which is being stored as a potential difference in case of this battery. और इस बैटरी का कुछ EMF होगा and this thyristor will be turned on या forward biased only if Vs is greater than E.
So for thyristor to be turned on, Vs should be यानी Vm sin omega t should be greater than the DC value which is being stored in the battery. So if this is the sinusoidal waveform or the value of Vs and this is your E, ये अगर E है तो ये जो E है यानी बैटरी का जो DC वोल्टेज है वो इस साइनोसॉइडल वोल्टेज को यहाँ पर कट करेगा. And these positions are called, suppose we name it as theta 1 and theta 2. So this thyristor will be forward biased between theta 1 to theta 2 for positive half cycle. Negative half cycle after pi to 2 pi, your thyristor will be reverse biased because the voltage सप्लाई वोल्टेज विल बी रिवर्स बायस्ड. तो पाई से 2 पाई तुम्हारा थायरिस्टर ऑलरेडी रिवर्स बायस्ड है. 0 टू पाई के बीच में जब थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस्ड हो रहा है उस ड्यूरेशन में भी थायरिस्टर तभी कंडक्ट करेगा जब हमारा Vm साइन ओमेगा टी या Vs की वैल्यू Vm sin omega t या Vs की value is greater than E. So if positive Vs is greater than V, thyristor is forward biased. Your thyristor is forward biased. So if we equate this equation, Vs is equal to E at omega t is equal to theta 1, right? इस पॉइंट पर हमारा E और Vm sin omega t दोनों इक्वल है. सो एट omega t is equal to theta 1, Vm sin omega t is equal to E. So you can write Vm sin omega t is equal to E और sin omega t की जगह हम theta 1 लिख सकते हैं. So Vm sin theta 1 is equal to E और theta 1 can be written as sine inverse of E divided by Vm. So for any battery load, any load which is example of a battery load, you can find this value of theta 1 and theta 2 will be equal to pi minus theta 1 as sinusoidal waveform is symmetrical. तो जिस पॉइंट पर ये थीटा 1 इसको कट करेगा, 0 से थीटा 1 का जो डिस्टेंस होगा वही थीटा 2 का डिस्टेंस होगा पाई से. तो हम क्योंकि बिकॉज दिस इज अ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म एंड दिस वेवफॉर्म विल हैव सिमेट्री अक्रॉस दिस फ्रीक्वेंसी. दिस विल हैव सिमेट्री अक्रॉस द फ्रीक्वेंसी. तो जो पॉइंट पर इसका जो डिस्टेंस होगा इसका भी वही डिस्टेंस होगा. सो थीटा 2 कैन बी रिटन एज pi minus theta 1. So that is why we have written here pi minus theta 1. So basically your thyristor will be conducting from theta 1 to theta 2. So firing angle can be selected between theta 1 to theta 2. ठीक है. Now if we apply KVL in this circuit, so you can write, this is suppose current I0 which is flowing through the circuit. So you can write Vs is equal to I0 into R0 plus E equal to Vs is equal to I0 into R0 plus E.
So applying KVL, you can write Vs is equal to R into I naught plus E, or I naught is equal to Vs minus E divided by R. And Vs is equal to Vm sin omega t, so you can write I naught is equal to Vm sin omega t minus E divided by R. ठीक है. Now this omega t can be changed. यहाँ पर omega t को ही हम change कर रहे हैं, तो omega t की value हम कोई भी अल्फा ले सकते हैं. So at omega t is equal to alpha, where alpha is your firing angle between theta 1 to theta 2. So at omega t is equal to alpha, I naught is equal to Vm sin alpha minus E divided by R. So I naught can be written as Vm sin alpha minus E divided by R. So I naught will be maximum at omega t is equal to 90 degree. अगर omega t is equal to 90 degree या alpha is equal to 90 degree लेते हैं हम, so this will become at alpha is equal to 90 degree, your I naught will become Vm minus E divided by R. Okay. And at omega t is equal to theta 2, अगर ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा 2 लेते हैं तो आई नॉट इज इक्वल टू वी एस माइनस ई डिवाइडेड बाई आर है, और एट ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा 2 वी एस इज इक्वल टू ई. एट ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा 2 वी एस और ई की वैल्यू जो है वो सेम है. So at this point your current will be equal to 0. So I naught will be equal to 0 at omega t is equal to theta 2 और omega t is equal to theta 1. इन दोनों ही पॉइंट पे करंट की वैल्यू 0 रहेगी. So at omega t is equal to theta 2 your thyristor will be turned off. ठीक है. So now if you see the circuit diagram, waveform of this RE load containing a single phase half wave rectifier, तो अब हम इस थायरिस्टर को टर्न ऑन कर सकते हैं एट एनी पोजीशन बिटवीन थीटा 1 टू थीटा 2. सपोज योर अल्फा इज समवॉट हियर. ठीक है. So this is your alpha. So your thyristor will be turned off after alpha. अल्फा से ऑन होगा. ऑन होने के बाद जो भी सप्लाई वोल्टेज है उसको फॉलो करेगा. सप्लाई वोल्टेज को फॉलो करके वेवफॉर्म बनाएगा टिल थीटा 2, क्योंकि थीटा 2 के बाद E की वैल्यू जो है, E की वैल्यू इज ग्रेटर देन Vs. वैल्यू ऑफ E इज ग्रेटर देन Vs. So after theta 2 your thyristor will be reverse biased, क्योंकि ये ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा Vs से. So Vs will be E will become more positive than Vs, और थायरिस्टर का जो कैथोड है वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा अपने एनोड से, एंड दैट इज़ वाई योर थायरिस्टर विल बी अंडर रिवर्स बायस्ड कंडीशन आफ्टर थीटा 2. आफ्टर थीटा 2 यू कैन सी दैट कि Vs की वैल्यू कम हो गई है, E की वैल्यू ज़्यादा है. सो इट विल कंडक्ट फ्रॉम अल्फा टू थीटा 2. उसके बाद हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो 0 रहेगा. अगेन इफ योर अल्फा इज समवॉट हियर, यहाँ पर अल्फा है हमारा, तो अगेन यू विल गेट योर आउटपुट वोल्टेज लाइक दिस. So from alpha to theta 2 your output voltage is conducting. Similarly, if you draw the current
I naught current. So this is your pi. This is pi, this is 2 pi. Right? So pi to 2 pi में हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल है, 0 to pi पॉजिटिव हाफ साइकिल है. सो अगेन योर आउटपुट करंट विल बी फ्रॉम अल्फा टू थीटा टू. आउटपुट करंट इंक्रीज होगा बिकॉज इट इज आर ई लोड, यहाँ पर इंडक्टर नहीं है. सो योर लोड करंट विल फॉलो द वोल्टेज लाइक दिस. इट विल फ्लो फ्रॉम अल्फा टू थीटा टू, उसके बाद फिर 0 हो जाएगा and again it will flow from alpha to theta 2. इस तरीके से तुमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा और आउटपुट करंट मिलेगा फॉर आर ई लोड. द करंट और द थायरिस्टर विल बी कंडक्टिंग बिटवीन थीटा 1 to theta 2. Okay, so this was theta 2. Next is if we have to tell the PIV यानी peak inverse voltage of the thyristor in case of charging a battery. So you can see here that this is the total negative voltage which is appearing across the thyristor, because यहाँ पर क्या है, ये भी नेगेटिव हाफ साइकिल में इसकी पोलैरिटी ऐसी हो जाएगी एंड दिस विल बी the total voltage. So plus minus, so there will be additive negative voltage across this thyristor. So plus Vs plus E will be your negative voltage which is applying across the thyristor in the reverse biased condition. So total peak inverse voltage. So यहाँ पर भी दिख रहा है this is E and this is Vm. ये Vs का maximum value, suppose इसको बीच में बनाते हैं. So this is your Vm and this is E. So addition of E plus Vm will be your peak inverse voltage. Vm plus E. Okay, and similarly if we want to calculate the circuit turn off time in this circuit, तो circuit turn off time कहाँ से होगा, थीटा 2 से लेकर के 2 पाई तक, थीटा 2 से लेकर के 2 पाई तक हमारा जो थीटा 2 से लेकर के थीटा 1 तक, जहाँ यहाँ पर हमारा जो भी थायरिस्टर है वो ऑन हो रहा है. सो फ्रॉम 2 पाई प्लस थीटा 1 we can take the circuit turn off time as 2 pi plus theta 1 minus theta 2. So this total time period from here to here is your circuit turn off time, omega tc. So circuit turn off time can be written as, first of all, peak inverse voltage or PIV in this case is equal to Vm plus E, and circuit turn off time is equal to 2 pi plus theta 1 minus theta 2. थीटा 2 को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा 1, so you can rewrite this equation as 2 pi plus theta 1 minus pi minus theta 2 theta 1. ये प्लस हो जाएगा, 2 पाई से माइनस पाई हो जाएगा, सो पाई प्लस 2 थीटा 1 हो जाएगा.
So this is your omega TC, value of omega TC, and TC can be written as pi plus 2 theta 1 divided by omega. ठीक है? So maximum reverse voltage which is applied across the thyristor is Vm plus E, and circuit turn off time for this type of application is pi plus 2 theta 1 divided by omega. थीटा 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया था. थीटा 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ E डिवाइडेड बाई Vm. तो अगर बैटरी का EMF हमको पता है और सप्लाई वोल्टेज का मैक्सिमम वोल्टेज हमें पता है, सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा 1. और थीटा 1 की वैल्यू आ गई तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सर्किट टर्न ऑफ टाइम फॉर हाफ वेव सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद RE लोड. ठीक है. नाउ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एवरेज वोल्टेज इन केस ऑफ RE लोड. जैसे कि हम बाकी जगह एवरेज वोल्टेज निकाल रहे थे, एरिया का सम करके डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ टोटल एरिया डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड ऑफ द सर्किट. तो यहाँ पर भी टाइम पीरियड ऑफ द सर्किट विल बी हाउ मच. टाइम पीरियड ऑफ द सर्किट इज अगेन 2 पाई हियर. 2 पाई के बाद ये हमारा जो भी वेव फॉर्म है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है. सो टाइम पीरियड ऑफ द सर्किट इज 2 पाई, and you will integrate this circuit from okay, so there is one correction here. ये zero नहीं रहेगा, this will be E, because this is the output. और जब ये ऑफ रहेगा, ऑफ कंडीशन में E will be the voltage which will be appearing across the circuit. So current will be 0, but voltage will be equal to E. So voltage, let me redraw the voltage. So your voltage will be like this. So there is a correction in the output voltage. I have drawn the output voltage as 0, but output voltage after the thyristor is off, also the output voltage will not be equal to 0, because this is where you are taking the output voltage, और output voltage में E already present है. Even though the thyristor is off, you will have the output voltage में E की value रहेगी. So that is why once the thyristor is off, you are getting E as your output voltage. और अल्फा से थीटा 2 तक Vm sin ओमेगा t इज योर आउटपुट वोल्टेज. सो इस आउटपुट वोल्टेज को 2 पाई के टाइम पीरियड तक के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे. यहाँ पर भी इसको E बना लो. सो दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज. E से इंक्रीज होकर के Vm sin ओमेगा t हुआ, फिर वापस E हुआ, फिर Vm sin ओमेगा t हुआ, एंड सो ऑन. So if you calculate the value of average voltage here, if you calculate the value of average voltage, तो 2 pi is the time period. 2 pi is the time period here. 2 pi के बाद ये सिग्नल अपना वेव फॉर्म रिपीट कर रहा है. So 2 pi is the time period. So you can write the average equation for average voltage. V naught is equal to 1 by 2 pi. This is the total time period. अल्फा से थीटा 2 तक हम Vm sin ओमेगा t को इंटीग्रेट करेंगे d ओमेगा t, और थीटा 2 से लेकर के 2 पाई प्लस अल्फा तक E को इंटीग्रेट करेंगे. So this is your output voltage waveform. See, अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा तक हम एक साइकिल कंसीडर कर रहे हैं. यहाँ से 0 से भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. 0 से 2 पाई करें या अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा करें, टाइम पीरियड हमारा 2 पाई ही रहेगा.
So we are integrating from alpha to theta to Vm sin omega t, और थीटा 2 से लेकर के 2 पाई प्लस अल्फा तक हम E को इंटीग्रेट करें, बिकॉज वी आर गेटिंग E एज योर आउटपुट वोल्टेज. सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द इक्वेशन. अब इसको साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस कॉस ओमेगा टी आएगा. माइनस कॉस ओमेगा टी को लिमिट देंगे अल्फा टू थीटा टू, वी एम बाहर आ जाएगा. वी नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई प्लस ई, you will get 2 pi plus alpha minus theta 2. राइट. सो इसको हम इसके वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos थीटा 2 माइनस cos अल्फा आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो यू विल गेट वी नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई वी एम cos ऑफ अल्फा माइनस cos ऑफ थीटा 2 प्लस ई 2 pi plus alpha minus theta 2. Always remember that these angles are in radians. ये जो है ये रेडियन में है. If you are calculating a numerical, if you are calculating for a numerical, so you have to remember that these angles are in radian because you are multiplying this with the voltage. और यहाँ पर जो भी एंगल हम मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली इसको रेडियन में कंसीडर करेंगे. ठीक है. अगर साइन और कॉस के टर्म्स में रहेगा तो उसको डिग्री में लेंगे. हियर इट इज टेकन इन डिग्री एंड हियर इट इज टेकन इन रेडियन. सो दिस हैज टू बी टेकन केयर व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग द न्यूमेरिकल यूजिंग दिस इक्वेशंस. ठीक है. सिमिलरली हमारा जो करंट है, लोड करंट जो है वो सिर्फ अल्फा से थीटा 2 तक फ्लो कर रहा है, उसके बाद ज़ीरो है. सो इफ यू सी दिस डायग्राम, so load current is flowing from alpha to theta 2, right. उसके बाद current is 0 for entire time period of 2 pi. so 0 से 2 pi इसका भी time period है. so you can integrate I नॉट, और I नॉट जो है वो क्या है, I नॉट इज वी एन साइन ओमेगा टी माइनस ई बाई आर. तो ये I नॉट की वैल्यू को हम इंटीग्रेट करेंगे. सो वी एस माइनस ई बाई आर d omega t. So you can write I naught is equal to 1/2 pi r Vm sin omega t को इंटीग्रेट, r को बाहर लेकर के आए, इसको भी इंटीग्रेट करना है, इसको भी इंटीग्रेट करना है. ये तो थीटा 2 माइनस पाई हो जाए, थीटा 2 माइनस अल्फा हो जाएगा, और वी एस जो है वो वी एस इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी. इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, साइन ओमेगा टी को माइनस कॉस ओमेगा टी लिखेंगे, फिर लिमिट पुट करेंगे. सो फाइनल इक्वेशन व्हाट यू विल गेट इज वी एम कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा 2 माइनस ई थीटा 2 minus alpha. Again these angles are in radians. So this is the average charging current of the battery. This is the equation of average charging current of battery. Any doubt till here? So we can next equate input power is equal to output power, और input power है हमारा Vs Is या VSR ISR into power factor, एंड आउटपुट पावर हमारा यहाँ पर कितना होगा, एक तो हमारा R के अक्रॉस पावर लॉस हो रहा है विच इज R स्क्वायर R,
और एक E के अक्रॉस ड्रॉप होगा विच इज E इंटू आई नॉट. So this is your output power and this is your input power. Okay, so this because your resistor is consuming the रजिस्टर के अक्रॉस सिर्फ डीसी करंट का लॉस नहीं होगा बल्कि टोटल आरएमएस करंट जो होगा उसका लॉस होगा. सो दिस आई नॉट कैन बी रिटन एज ISR. I naught is equal to ISR for resistive load. ओके, सो ISR या IOR लिख सकते हो, जो भी जैसा भी है. दिस इज आउटपुट RMS करंट. सो बिकॉज दिस इज योर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी लॉस होगा दैट लॉस विल बी बिकॉज ऑफ डीसी करंट एज वेल एज द आरएमएस कंपोनेंट या हार्मोनिक इंक्लूडिंग इन द करंट. तो इस वजह से यहाँ पर हम आई नॉट की जगह ISR लिख सकते हैं. सो योर इक्वेशन बिकम्स पावर फैक्टर इज इक्वल टू ISR का होल स्क्वायर इंटू R प्लस E इंटू आई नॉट. बैटरी सिर्फ डीसी करंट से चार्ज होगा, सो दैट इज वाई वी आर टेकिंग E इंटू आई नॉट in divided by VSR into ISR. So this is the equation for calculating the input power factor for battery charging application of using a thyristor. Battery charging application using a thyristor. ठीक है. सिमिलरली अगर हमको IOR की वैल्यू निकालनी होगी तो IOR की वैल्यू हम जैसे हम आउटपुट RMS करंट निकाल रहे थे वैसे ही IOR की वैल्यू निकाल सकते हैं. 1/2 पाई अल्फा टू थीटा टू VM sin ओमेगा t माइनस E डिवाइडेड बाई R इसका होल स्क्वायर डी ओमेगा टी पूरे का 1/2. सो दिस इज RMS output RMS current. I naught was DC output DC current, average current. ठीक है, this is output average current and this is output RMS current. तो RMS current है तो RMS का फुल फॉर्म क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. तो यहाँ पर हम इस पूरे का हमने स्क्वायर किया, उसका मीन लिया, मीन यानी एवरेज लिया और इस पूरे का अंडर रूट कर दिया, 1/2 कर दिया. सो यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर. स्क्वायर का मीन लेकर के उसको 1/2 कर देंगे, टोटल का 1/2 विल गिव यू द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द आउटपुट RMS करंट. सो दैट इज हाउ यू कैन राइट दिस इक्वेशन. तो यहाँ पर जो पावर फैक्टर हमने ISR के टर्म्स में लिखा था सेम पावर फैक्टर हम IOR के टर्म्स में लिख सकते हैं बिकॉज IOR इज इक्वल टू ISR. सेम करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट, राइट. तो जो भी RMS करंट यहाँ से फ्लो कर रहा होगा वही इनपुट में फ्लो कर रहा होगा. सो ISR इज इक्वल टू IOR. सो पावर फैक्टर कैन बी रिटन एज IOR square into R plus E into I naught divided by VSR into ISR. IOR. So this is the value of power factor for single phase half wave rectifier with battery load. Battery load या RE load. ठीक है. So this was about single phase half wave rectifier. Now we will study about single phase full wave rectifier. तो diode, when you were studying single phase full wave rectifier, तो उस केस में हमने डायोड के केस में भी देखा कि दो तरीके का सर्किट होता है सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में. एक होता है ब्रिज सर्किट और दूसरा होता है सेंटर टैप रेक्टिफायर या मिड पॉइंट रेक्टिफायर. तो
Now let us see single phase full wave rectifier. या इसको हम टू पल्स कन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं. टू पल्स कन्वर्टर. So single phase full wave rectifier is divided into two types of circuit. First is bridge rectifier. And second is midpoint rectifier. So bridge rectifier जो हम 4 डायोड्स कनेक्ट करते हैं उस टाइप के सर्किट को बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर. सो डायोड की जगह यहाँ पर हम थायरिस्टर्स कनेक्ट कर रहे हैं या SCR कनेक्ट कर रहे हैं. सो दिस इज द सर्किट फॉर ब्रिज रेक्टिफायर. सो दो थायरिस्टर for each cycle, positive cycle and negative cycle. Two thyristors conduct for each cycle. So T1 and T2 conduct for positive half cycle and T3 and T4 conducts for negative half cycle. Right? So this is your circuit for bridge rectifier. Suppose we connect our load with this. ठीक है. सो दिस इज योर VS सप्लाई वोल्टेज. तो बेसिकली पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, जब ये पॉजिटिव है और ये टर्मिनल नेगेटिव है तो उस टाइम पर ये पॉजिटिव हमारे थायरिस्टर का ये एनोड है, ये कैथोड है. राइट, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, एनोड कैथोड, ऐसा ही है. तो जब इसको पॉजिटिव मिलेगा और इसको नेगेटिव मिलेगा, यू आर गिविंग दिस पॉजिटिव दिस नेगेटिव, तो ये थायरिस्टर ऑन होगा with the positive supply you are giving to it, and this thyristor will turn on for the negative supply because cathode is getting the negative supply. तो ये दोनों thyristor for positive half cycle conduct करेंगे और for negative half cycle जब इसका टर्मिनल जो है वो रिवर्स हो जाएगा, so this will be negative, this will be positive. So इसके साथ ये जो थायरिस्टर है इसको नेगेटिव मिलेगा बिकॉज इट इज कनेक्टेड हियर, और इस थायरिस्टर को पॉजिटिव मिलेगा. सो दिस विल बी कंडक्टिंग फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल. सो पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 and T2 will be forward biased and negative half cycle T3 and T4 will be forward biased. Right? So T1, when T1 and T2 will be on, output voltage will be equal to Vs. This output voltage will be equal to Vs and output current will be equal to Vs by R. और जब T3, T4 on होंगे तो output voltage will also be equal to Vs and I0 will be equal to Vs by R. See, करंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमको नेगेटिव साइकिल में भी पॉजिटिव वेव फॉर्म मिलता है. सो यू नो दैट इन केस ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर, in case of a full wave rectifier, so you get your output voltage as this.
नेगेटिव हाफ साइकिल में भी कभी जो आउटपुट मिलता है वो पॉजिटिव साइड में मिलता है. सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव. सो the output voltage we are getting like this and this is your input voltage. So ये इसलिए हो रहा है because the direction of current from the load is not changing. So अगर ये दोनों thyristor on है, suppose for the positive cycle T1 and T2 is on, so current is flowing from T1 to the output to the T2 and वापस सप्लाई में. जब नेगेटिव साइकिल के लिए T4 और T3 ऑन होंगे तो उस केस में T3 से कंडक्ट होगा. ठीक है, ये नेगेटिव है तो T3 इज पॉजिटिव, सो T3 विल गेट टर्न्ड ऑन. T3 से कंडक्ट होगा करंट, T4 में जाएगा और वापस सप्लाई में. सो इफ़ यू सी द डायरेक्शन ऑफ करंट हियर, तो करंट जो है वो सप्लाई में तो चेंज हो रहा है करंट का डायरेक्शन, बट आउटपुट में चेंज नहीं हो रहा है. तो मैं रेड कलर से पॉजिटिव हाफ साइकिल बनाती हूँ. सो दिस इज द पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट. सो करंट थ्रू in the positive half cycle it is flowing like this. So your drop is plus minus like this, क्योंकि करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस. एंड दिस इज द करंट विच इज फ्लोइंग फ्रॉम द इन द इनपुट साइड. अगर नेगेटिव साइकिल में देखेंगे तो नेगेटिव साइकिल में करंट T3 से फ्लो हो रहा है. अगेन द डायरेक्शन ऑफ करंट अक्रॉस द आउटपुट इज सेम, बट इफ यू सी द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द इनपुट इट इज नॉट चेंजिंग. ठीक है, T4 से इस पॉइंट से वापस जाएगा सप्लाई में. तो इनपुट के साइड तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट इनपुट इज हैविंग अ AC सप्लाई. इनपुट के साइड करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट आउटपुट के साइड करंट का डायरेक्शन सेम है. सो दैट इज वाई यू आर कन्वर्टिंग AC टू DC. और इस तरीके से करंट का डायरेक्शन फ्लो होगा व्हेन T1, T2 and T3, T4 is conducting. So this is one type of full wave rectifier which is called as bridge rectifier. Second type of rectifier is midpoint rectifier or center tap rectifier. तो बेसिकली यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लेते हैं हम और उसके नंबर ऑफ टर्न्स को मिड पॉइंट पे सेंटर टैप करते हैं. टैपिंग लेते हैं बेसिकली उसका नंबर ऑफ टर्न्स जितने भी होते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, उसको सेंटर में उसकी टैपिंग करते हैं और वहाँ से हम उसको डिवाइड कर देते हैं. सो सपोज दिस इज द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर. सो वी टेक द सेंटर ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड नाउ वी विल कनेक्ट द लोड एट दिस पॉइंट, एट द सेंटर ऑफ द ट्रांसफार्मर. तो इसीलिए इसको बोलते हैं सेंटर टैप या मिड पॉइंट रेक्टिफायर. इस रेक्टिफायर में दो ही थायरिस्टर से काम चल जाता है. मतलब हम लोग को अगर फुल वेव रेक्टिफायर बनाना है तो दो ही थायरिस्टर से ये मिड पॉइंट रेक्टिफायर जो है वो दो ही थायरिस्टर के हेल्प से हमको आउटपुट दे देता है. ठीक है, so this is your output voltage. This is plus minus Vs, and because this is center tap you will get, this is basically 1:2 transformer. तो जो भी हम सप्लाई वोल्टेज में दे रहे हैं उसका 2 टाइम्स हमको सेकेंडरी में मिलेगा बिकॉज यू आर गिविंग इट सेंटर टैप. सो कई बार तुम लोग ने देखा होगा कि 220 वोल्ट का हम 0 to 220 वोल्ट सेंटर टैप करते हैं. तो इस तरीके से यू विल गेट प्लस माइनस Vs here and plus minus Vs in the negative cycle also. मतलब इन दोनों टैपिंग में you will get plus minus Vs here, plus minus Vs here. So अब हमारा जो ये थायरिस्टर है ये किस तरीके से कंडक्ट करेगा. फॉर पॉजिटिव साइकिल जब प्लस माइनस Vs ऐसा है, सो दिस इज योर प्लस माइनस Vs पॉजिटिव हाफ साइकिल में. तो यहाँ पर जो सेंटर टैप में जो हमको आउटपुट मिलेगा दिस विल बी प्लस माइनस लाइक दिस, प्लस माइनस लाइक दिस. तो ये इसके प्लस के साथ ये फॉरवर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस होगा.
but this negative terminal will reverse bias this thyristor. So we have T1 and T2, two thyristors here. So for positive half cycle, T1 will be forward biased, and for negative cycle, T2 will be forward biased. नेगेटिव साइकिल में हमारी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव. सिमिलरली ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. तो नेगेटिव हाफ साइकिल में T1 जो होगा वो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, T2 फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, एंड करंट विल बी फ्लोइंग लाइक दिस. सो अगेन इन दिस टाइप ऑफ रेक्टिफायर ऑल्सो यू विल सी कि करंट का डायरेक्शन आउटपुट से चेंज नहीं हो रहा है. जब T1 कंडक्ट करेगा तो करंट का डायरेक्शन ये है आउटपुट के अक्रॉस, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यू विल गेट दी पॉजिटिव आउटपुट. And when T2 is conducting, then also the output direction of output current is not changing. So that is why you are getting positive half cycle for both टाइप ऑफ साइकिल्स. पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए दोनों के लिए हमको पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज मिलता है. दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज फुल वेव रेक्टिफायर, जहाँ पर पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल दोनों के लिए हमको आउटपुट जो मिल रहा है वो पॉजिटिव मिल रहा है. सो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल के लिए हमको आउटपुट जो मिल रहा है वो पॉजिटिव मिल रहा है. नाउ क्योंकि हम यहाँ पर डायोड की जगह थायरिस्टर यूज कर रहे हैं, सो योर थायरिस्टर विल बी कंडक्टिंग लाइक दिस. So suppose this is the alpha. So क्योंकि ये फुल वेव रेक्टिफायर है तो इसमें एक थायरिस्टर पॉजिटिव साइकिल के लिए, दूसरा थायरिस्टर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए. तो अब दोनों थायरिस्टर का हमको अल्फा जो है वो देना पड़ेगा, यानी कि इस साइकिल में ब्रिज रेक्टिफायर में T1 T2 कंडक्ट कर रहे हैं और इसमें T3 T4 कंडक्ट कर रहा है. सिमिलरली मिड पॉइंट रेक्टिफायर में इस साइकिल में T1 कंडक्ट कर रहा है और इसमें T2 कंडक्ट कर रहा है. सो दोनों के लिए हमको अल्फा की वैल्यू सेट करना होगा, और आफ्टर अल्फा यानी आफ्टर अल्फा फायरिंग एंगल योर थायरिस्टर विल बी कंडक्टिंग. सो यू विल गेट योर आउटपुट वोल्टेज लाइक दिस. ये फॉर आर लोड है. जस्ट रिमेंबर दैट whatever I am drawing now is for resistive load. ठीक है, लोड चेंज होगा तो हमारा आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म भी चेंज हो जाएगा. सो यू विल गेट योर आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म लाइक दिस. ठीक है, सो दिस इज योर कंडक्टिंग एरिया ऑफ थायरिस्टर. सो T1 T2, T3 T4, again T1 T2. Similarly, for midpoint rectifier, T1 will be conducting for this area, T2 will be conducting for this area, and T1 will be conducting for this area. अगर हम इसका आउटपुट करंट बनाते हैं so output current will be like this, same as the output voltage. So this will be Vs by R, Vs by R, and Vs by R. This is your output current. ठीक है. Now if you see कि एक set of thyristor T1 T2 या T1 any one set of thyristor is turned off for duration of pi. यहाँ पर from 0 to pi, this is 2 pi, 0 to pi T1 T2 कंडक्ट कर रहा है, उसके बाद वो ऑफ है. pi to 2 pi
T3 T4 कंडक्ट कर रहा है, उसके बाद वो ऑफ है. सो वन सेट ऑफ थायरिस्टर is conducting for pi duration and off for pi duration. तो पाई के लिए एक सेट काम कर रहा है और दूसरा सेट जो है वो पाई टू 2 पाई के लिए काम कर रहा है. तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम फॉर एनी थायरिस्टर विल बी इक्वल टू पाई. पाई ड्यूरेशन के लिए एक सेट ऑफ थायरिस्टर ऑफ हो रहा है. सो फॉर एनी थायरिस्टर circuit turn of time omega tc will be equal to pi and tc will be equal to pi by omega seconds. ठीक है. Now if you want to calculate the value of average voltage, so you can integrate this from alpha to pi. ये अल्फा हमारा अल्फा से पाई तक अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, सी इन दिस केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर योर टाइम पीरियड इज पाई, क्योंकि पाई ड्यूरेशन के बाद हमारा जो सर्किट है वो अपना वेव फॉर्म रिपीट कर रहा है. सो फ्रॉम 0 to pi you have one waveform, from pi to 2 pi again you have one waveform. So this entire waveform is repeating its waveform after pi duration. तो इस waveform का, इस सिग्नल का जो टाइम पीरियड है वो पाई है यहाँ पर, जो कि 2 पाई था इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर. सो यू कैन राइट V नॉट इज इक्वल टू 1/पाई अल्फा 2 पाई Vm sin ओमेगा t d ओमेगा t. सो V नॉट कैन बी रिटन इज, इसको इंटीग्रेट करेंगे Vm बाई पाई बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी को अल्फा 2 पाई तक इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट cos of alpha minus cos of pi. So cos of pi is -1, so -1 माइनस मिलके +1 हो जाएगा. So V नॉट विल बी इक्वल टू Vm बाई पाई 1 plus cos alpha. Right? Also you can calculate the value of VOR, यानी output RMS voltage, and output RMS voltage will be equal to Vm divided by under root of 2 pi minus alpha. ये जो जनरलाइज्ड इक्वेशन मैंने लास्ट सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर में बताया था, वहाँ से ये इक्वेशन आएगा Vm बाई अंडर रूट ऑफ 2 पाई माइनस अल्फा 1+1/2 साइन 2 अल्फा. ठीक है. और यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट RMS वोल्टेज, इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं 1/पाई अल्फा 2 पाई Vm साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर डी ओमेगा टी to the power 1/2. So you can calculate the value of output RMS voltage using this also. ठीक है. So आज इतना ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास में आई विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर, और फिर हम लोग RL लोड के बारे में, ये जितना भी अभी डिस्कशन हुआ दिस वाज फॉर फुल वेव रेक्टिफायर विद R लोड, and then we will be continuing for full wave rectifier with RL load. So let me take your attendance and then we can end the class.
Okay, thank you everyone.